امریکی صدر کا ایران کے ساتھ جنگ جلد ختم ہونے کا دعویٰ۔ فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ ختم ہونے کے قریب ہے۔ ایران کسی بھی طریقے سے معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ میں مداخلت نہ کرتا تو اس وقت ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوتے۔ ایران کی ایٹمی طاقت بننے سے عالمی توازن متاثر ہوتا ہے۔ میں ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ایران کی تعمیر نو کے لیے 20 سال درکار ہیں۔ ادھر نیو یارک پوسٹ کو انٹرویو میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران سے مذاکرات کا اگلا دور پاکستان میں آئندہ 2 روز میں ہو سکتا ہے۔ امریکی میڈیا کو وہاں ہونا چاہیے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل زبردست ہیں، اس لیے امکان ہے کہ ہم دوبارہ اسلام آباد جائیں۔ ہم کسی ایسے ملک میں کیوں جائیں جس کا اس معاملے سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ ایران سے بات چیت کے لیے پاکستان جانے کا امکان زیادہ ہے۔ ABC نیوز چینل کے رپورٹر سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ جنگ بندی میں توسیع کے بارے میں نہیں سوچ رہا، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آنے والے 2 دن انتہائی اہم اور غیر معمولی ہوں گے۔ ایران جنگ کا اختتام کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے۔ ایران سے معاہدہ زیادہ بہتر آپشن کو دوبارہ تعمیر کا موقع ملے گا۔ ایران میں اب ایک مختلف نظام قائم ہو چکا ہے۔ انتہا پسند عناصر کو ختم کر دیا گیا اور وہ اب موجود نہیں ہیں۔ اگر میں صدر نہ ہوتا تو دنیا تباہی کا شکار ہو چکی ہوتی۔ نیٹو اتحاد امریکہ کے لیے مؤثر ثابت نہیں ہوا۔ نیٹو نہ ماضی میں امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوا اور نہ ہی مستقبل میں ہوگا۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا دوسرا دور ہو تو پاکستان ہماری ترجیح ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا ایک اور دور جلد اسلام آباد میں ہونے کی خبریں تیزی سے گردش کر رہی ہیں۔ نیوز ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ دوسری طرف کا معلوم نہیں۔ برطانوی خبر ایجنسی رائٹرز نے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ امریکہ اور ایران کے وفود رواں ہفتے امن مذاکرات کے لیے دوبارہ اسلام آباد آ سکتے ہیں۔ پاکستان میں ایرانی سفارتخانے کے اہلکار نے بھی رائٹرز سے گفتگو میں کہا کہ امریکہ ایران مذاکرات کا اگلا دور اس ہفتے یا اگلے ہفتے کے آغاز میں ہو سکتا ہے۔ امریکی خبر ایجنسی نے 2 پاکستانی عہدیداروں کے حوالے سے کہا تھا کہ پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی دوسرے مرحلے کی میزبانی کی پیشکش کر دی ہے۔ پاکستان بین الاقوامی سطح پر سفارتی سرگرمیاں تیز کرنے کو تیار۔ وزیر اعظم کا اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ 3 برادر ممالک کا دورہ شیڈول۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف 15 سے 18 اپریل تک سعودی عرب، قطر اور ترکیہ کے سرکاری دورے کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب اور قطر کے دورے کے دوران دونوں ممالک کی قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ ملاقاتوں میں 2 طرفہ تعاون، علاقائی امن و استحکام اور باہمی تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف ترکیہ میں 5ویں انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت کریں گے۔ انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں وزیر اعظم عالمی رہنماؤں کے ساتھ لیڈرز پینل میں پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ فورم کے ایک موقع پر وزیر اعظم کی ترک صدر رجب طیب اردوان اور دیگر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔ وزیر اعظم کے ہمراہ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی ہوں گے۔ اعلیٰ سطح کے پاکستانی وفد عالمی امور پر مؤثر سفارتی رابطوں کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مختلف ملاقاتیں کرے گا۔ ایران کا امریکی بحری ناکہ بندی پر سخت رد عمل۔ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا میری مقدم نے امریکی بحری ناکہ بندی کو غیر قانونی، اشتعال انگیز اور غیر تعمیری اقدام قرار دیتے ہوئے اسے خطرناک غلطی کہا ہے۔ یہ غلط اندازہ مزید غلطیوں میں اضافہ کر رہا ہے۔ اس کے سنگین نتائج نہ صرف خطے بلکہ اس سے باہر تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ معاشی دہشت گردی، روزگار، عالمی امن، سلامتی اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ یہ اقدام ممکنہ طور پر باعزت اخراج اور صورتحال سے نکلنے کی کوشش کے طور پر کیا گیا۔ ایرانی سفیر کا کہنا تھا کہ ایسے اقدامات کا مقصد یہ تاثر دینا ہوتا ہے کہ فیصلے طاقت کے زور پر مسلط کیے جا رہے ہیں، جبکہ اس سے اسلحے کے استعمال اور اضافی اخراجات کا بھی جواز فراہم کیا جاتا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے IMF کے فرسٹ ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر ڈین کیٹل سے ملاقات کی ہے اور پروگرام کے تسلسل اور بیرونی جھٹکوں کے اثرات پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خزانہ نے مشن ٹیم کی جانب سے IMF پروگرام کے جائزے کے مؤثر اور ہموار انعقاد پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر خزانہ کے مطابق سٹاف لیول کا معاہدہ کامیابی سے طے پا چکا۔ اب IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری کا انتظار ہے۔ وزیر خزانہ نے جاری تنازع کے پاکستان کی معیشت پر فوری اثرات سے متعلق بریفنگ دی۔ وزیر خزانہ نے توانائی کی خریداری اور لاجسٹکس کے حوالے سے درپیش چیلنجز پر روشنی ڈالی۔ طلب کے نظم و نسق اقدامات اور مالیاتی طور پر غیر جانبدار ہدفی سبسڈیز پر بھی بات چیت کی گئی۔ وزیر خزانہ نے آئندہ ماہ بجٹ سے متعلق مذاکرات اور ٹیکس امور پر مشاورت کے لیے IMF مشن کے متوقع دورے کا خیر مقدم کیا۔ JD وینس مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ میں بھی امریکی وفد کی قیادت کریں گے۔ امریکی میڈیا کے مطابق جنگ بندی ختم ہونے سے پہلے اگر ایران سے ایک اور میٹنگ طے ہوتی تو اس کی ممکنہ قیادت نائب صدر JD وینس کریں گے اور امریکی وفد میں صدر ٹرمپ کے خصوصی مندوب سٹیو ویٹکوف اور داماد جیرڈ کشنر بھی شامل ہوں گے۔ جو معاملہ حل طلب ہے اس میں یورینیم کی افزودگی کو معطل کرنے کے عمل کا ٹائم فریم بھی شامل ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران کی نیوکلیر افزودگی سے جڑی تنصیبات کو ختم کر دیا جائے اور آبدہ ہرمز پھر سے کھولے جائے۔
ट्रंप की पोम्पियो और इटली की वज़ीर-ए-आज़म पर एक बार फिर सख्त तनकीद। अमरीकी सदर ने पोम्पियो पर तनकीद करते हुए कहा कि उन्हें ईरान के एटमी खतरे का कोई इल्म नहीं, उन्हें जंगों पर बात नहीं करनी चाहिए। पोप को यह भी मालूम नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है। ट्रंप ने इतालवी वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी पर तनकीद की, कहा वो खुद नाकाबिल कबूल हैं क्योंकि वो ईरान के जौहरी खतरे को संजीदा नहीं लेती। मेलोनी को यह भी फिक्र नहीं कि ईरान के पास एटमी हथियार हों या ना हो, अगर मौका मिले तो ईरान को इटली 2 मिनट में तबाह कर सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का इसहाक डार को फोन। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात पर पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इजहार। एंटोनियो गुतेरेस का कहना था कि मशरिक़ वुस्ता के बहरान का फौजी हल नहीं है, संजीदा मुज़ाकरात दोबारा शुरू होने चाहिए। बैनुल अक़वामी बहरी आमद-ओ-रफ़्त के हुकूक़ और आज़ादियों का एहतराम किया जाए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुकालमे और सफारतकारी जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। आगे बढ़े, आपको बताएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कंफ्यूज। कमेटियों में वापसी बाल अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई की कोर्ट पे डाल दी। पीटीआई अरकान कायमा कमेटियों में वापसी के ख्वाहिशमंद भी हैं, अलीमा खान की नाराजगी से भी बचने के ख्वाह हैं। ज़राए के मुताबिक पीटीआई अरकान ने कायमा कमेटियों में वापसी के लिए अलीमा खान को मनाने का टास्क महमूद खान अचकज़ई को सौंप दिया है। महमूद खान अचकज़ई का बानी चेयरमैन की रजामंदी के बगैर कोई भी कदम उठाने से वाज़ेह इनकार। अचकज़ई का कहना है कि बानी चेयरमैन को पैगाम भेजूंगा, जो जवाब आया उसके मुताबिक फैसला करेंगे। बानी चेयरमैन के जवाब के बाद अलीमा खान को भी एतमाद में लेंगे। बेशतर अरकान का कहना है कि सियासी तौर पर मामलात बेहतर करने के लिए हमें पार्लियामेंट की कायमा कमेटियों से इस्तीफे वापस लेने चाहिए। कायमा कमेटी से इस्तीफों के बायस हम हुकूमत को टफ टाइम देने में कामयाब नहीं हो पा रहे। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि पीटीआई लीडरशिप शदीद कंफ्यूज है। कमेटियों में वापसी और बाल अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई की कोर्ट पे डाल दिया गया। पीटीआई अरकान कायमा कमेटियों में वापसी के ख्वाहिशमंद हैं और इस हवाले से महमूद खान अचकज़ई को अलीमा खान को मनाने का टास्क सौंप दिया गया है। महमूद अचकज़ई का बानी चेयरमैन की रजामंदी के बगैर कोई भी कदम उठाने से वाज़ेह इनकार भी सामने आया है। आपको बताते चलें कि पीटीआई अरकान कायमा कमेटियों में वापसी के ख्वाहिशमंद हैं और अलीमा खान की नाराजगी से भी बचने के ख्वाह हैं। एक कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है। इस हवाले से अब महमूद खान अचकज़ई को एक टास्क सौंपा गया है कि वो अलीमा खान को बनाएं। ताहम उन्होंने कहा कि बानी चेयरमैन से जो जवाब आएगा उसी को हतमी समझा जाएगा और अलीमा खान को बनाने के हवाले से भी उनका इनकार सामने आया। पीटीआई अरकान कायमा कमेटियों में वापसी के ख्वाहिशमंद हैं। उनका यह कहना है कि हम हुकूमत को टफ टाइम देने में कामयाब नहीं हो पा रहे। बानी पीटीआई की कानूनी दस्तावेजात का मामला। वकील बानी पीटीआई खालिद यूसुफ चौधरी ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को दोबारा खत लिख दिया। पावर ऑफ अटॉर्नी और कानूनी दस्तावेजात एक बार फिर जेल हुकाम को इरसाल। कहा बानी पीटीआई से फौरी दस्तखत करवा के दस्तावेजात वापस की जाएं। खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पावर ऑफ अटॉर्नी और कानूनी दस्तावेजात 7 अप्रैल को टीसीएस के जरिए भेजे गए। दस्तावेजात 9 अप्रैल को दोपहर 3:13 पर जेल ऑफिस में मौसूल हुए। 13 अप्रैल को अडियाला जेल के गेट नंबर 5 पर पहुंचा। कई घंटे इंतजार के बाद बताया गया कि दस्तावेजात का रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। खत की नकल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और सेक्रेटरी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को भी अरसाल की गई। अहम खबर है बानी पीटीआई से फौरी दस्तखत करवाकर दस्तावेजात वापस की जाएं। पर पावर ऑफ अटॉर्नी और कानूनी दस्तावेजात एक बार फिर जेल हुकाम को इरसाल की गई हैं। वकील बानी पीटीआई खालिद यूसुफ चौधरी ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को दोबारा खत लिख दिया है और एक बार फिर जेल हुकाम को दस्तावेजात इरसाल की गई हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे अनवार अब्बासी से। जी अनवार, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल बानी पीटीआई की कानूनी दस्तावेजात के हवाले से वकील बानी पीटीआई खालिद यूसुफ चौधरी ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को दोबारा खत लिख दिया है। पावर जात एक बार फिर जेल हुकाम को अरसाल कर दी गई है। बानी पीटीआई से फौरी दस्तखत करवाकर दस्तावेजात वापस किए जाएंगे। खालिद यूसुफ का ये कहना है, उन्होंने कहा है कि साबिक खत 6 अप्रैल 2026 को भी लिखा गया था, उसका भी हवाला दिया गया। पावर अटॉर्नी और कानूनी दस्तावेजात 7 अप्रैल को टीसीएस के जरिए भेजे गए। वकील बानी पीटीआई खालिद यूसुफ चौधरी का कहना है कि दस्तावेजात 9 अप्रैल को दोपहर 3:13 पर से पहले जेल ऑफिस में मौसूल हो चुकी है। 13 अप्रैल को अडियाला जेल के गेट नंबर 5 पर पहुंचा दी गई थी। जेल स्टाफ और सदर पुलिस के पास आमद और मकसद बाकायदा रिकॉर्ड भी करवाया गया था। खालिद यूसुफ ने यह भी कहा है कि कई घंटे इंतजार के बाद बताया कि दस्तावेजात रिकॉर्ड भी नहीं मिल रही। वकील बानी पीटीआई खालिद यूसुफ चौधरी ने यह भी बताया कि असास कानूनी दस्तावेजात का गायब होना संगीन इंतजामी गफलत है। उन्होंने ये भी कहा कि ये अमल कानूनी कार्रवाई में रुकावट और इंसाफ तक रसाई में मुदाखलत भी हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि बानी पीटीआई के बुनियादी हकूक और फेयर ट्रायल के हक के। जी बहुत शुक्रिया अनवार।
सी डी ए का ऑपरेशन का दूसरा रोज इस्लामाबाद के इलाके नूरपुर शाह में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन का दूसरा रोज पुलिस की भारी नफरी मौजूद, इलाका बकीन सामान इकट्ठा करने में मसरूफ। अपडेट कर रहे हैं अरशद शाद। जी बिल्कुल, CDA का तजावजात के खिलाफ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन जारी है। कल सुबह से इस्लामाबाद के इलाके नूरपुर शाहान में भी ऑपरेशन जारी है। हमने देखा कि कल जो यहाँ के रिहायशी हैं, लोकल इलाका मकीन हैं, उनकी जानिब से मज़ाहमत का जो है वो मुजाहिरा किया गया। कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। हमारे लोगों के जो है ना, हम मुकामी लोग थे, हमारे हकूक भी हैं इधर। हमारी कुछ लाटें इन्होंने दी थी, वो भी लोगों के कब्जे पर है। पहले तो अपने घर थे, चलो खर्चा हो जाता था बच्चों के लिए, अभी जो कमाएंगे बच्चों के लिए तो वो तो किराया देंगे। हम अपने छत का सामान सेव कर लेते हैं, लेकिन ये घर पे 3 मशीनें लगाना, 3 मशीनरी है घर में, गड्ढे लगाना, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है, जुर्म है। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि शहरी कह रहे हैं कि हमें कोई पेशगी तलात नहीं मिली, जबकि CDA का मौक़िफ़ है कि पेशगी जो है वो नोटिफिकेशन जारी किए गए और यहाँ पे जो तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन है उससे पहले शहरियों को आगाह किया गया था। लेकिन शहरी कहते हैं कि हमें बिल्कुल आगाही नहीं थी, अचानक से ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, जिनकी वजह से उनके कुछ सामान का भी नुकसान हुआ, मज़ाहमत का भी जो है वो CDA को सामना करना पड़ा। पुलिस और जो मुजाहिरीन है उनका तसादुम भी कल देखने में आया, लेकिन आज ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। आज भी ऑपरेशन जारी है, पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात है, जबकि जिनके घर गिरा दिए गए हैं वो अपना सामान समेटने में मसरूफ हैं। जी टिक टाक सना यूसुफ कत्ल केस में ट्रायल कोर्ट पर अदम एतमाद का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुलजिम उमर हयात की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने उमर हयात की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार वकील और स्टेट काउंसिल अदालत पेश हुए। अदालती इस्तिफसार पर वकील ने जवाब दिया कि रिपोर्ट फाइल कर दी गई, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या कहती है रिपोर्ट, मॉडल कोर्ट के पास केस है, वो तो जल्दी ही करेगी। मुलजिम के वकील ने दलाल दिए कि कोर्ट का हमारे साथ कंडक्ट ठीक नहीं, केस किसी भी दूसरी कोर्ट में मुंतकिल कर दिया जाए। मुद्दई मुकदमा के वकील ने अपने दलाइल में कहा कि 10 माह हो गए, चीफ बयान हो चुके हैं और 6 माह में उन्होंने सिर्फ 2 गवाहान पर जरा की है। जस्टिस कादिम हुसैन सुमरो की अदालत ने तफसीली फैसला भी दिया था। आज दिन तक जरा नहीं हुई। ट्रायल कोर्ट मॉडल कोर्ट है और उसने उन्हें बहुत सहूलत दी। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब हुकूमत की तरफ से सियालकोट विमेंस यूनिवर्सिटी की अराजी वापस देने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने पंजाब हुकूमत को जवाब जमा करवाने के लिए मजीद 2 हफ्तों की मोहलत दे दी। जस्टिस मोहम्मद चौधरी इकबाल ने मियां दाऊद एडवोकेट की आईनी दरखास्त पर समाअत की। सियालकोट वुमेन्स यूनिवर्सिटी की बाबत सुप्रीम कोर्ट का 2016 का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में पेश। मियां दाऊद एडवोकेट ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने 2016 में सुप्रीम कोर्ट में यकीन दहानी करवाई कि एक्वायर शुदा जगह पर यूनिवर्सिटी ही बनेगी। पंजाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी करवाई कि जिस मकसद के लिए जगह एक्वायर की गई वो मकसद तब्दील नहीं किया जाएगा। तयशुदा कानून है कि सुप्रीम कोर्ट में यकीन दहानी के बाद आज पंजाब हुकूमत अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट सकती। ख़वातीन की यूनिवर्सिटी की जगह सरकारी अफसरान के लिए ही ली नहीं जा सकी। पंजाब काबीना के रूबरू ब्यूरोक्रेसी ने झूठ बोलकर ख़वातीन की यूनिवर्सिटी को 120 एकड़ जगह छीनने की मंजूरी हासिल की। एडिशनल एडवोकेट जनरल चौधरी तनवीर अख्तर ने बताया कि पंजाब हुकूमत को जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत दरकार है। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल का पंजाब हुकूमत के वकील एडिशनल एडवोकेट जनरल चौधरी तनवीर अख्तर से अहम मुकालमा भी सामने आया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।